تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا، کیونکہ یہ جو عمر طویل ہونا ہے نا، اس پہ تھوڑی سی بات ہو سکتی ہے نا کہ سبحان صاحب، علامہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ سانسیں تو گنی چنی ہے، تو عمر طویل کیسے ہوگی؟ تو یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ عمر کو لمبا کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے نیکی ہی ہے جو عمر کو بڑھاتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے تم چاہتے ہو تمہارے رزق میں کشادگی اور عمر میں اضافہ ہو تو تم قرابت داروں سے صلہ رحمی کرو، جو قریبی عزیز ہیں ان سے صلہ۔ تو یہ عمر میں لمبے ہونے کا مطلب کیا ہے شرعی طور پہ؟ اٹس ویری سمپل۔ ایک تو یہ ہے کہ جتنی آپ کی عمر ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرے گی، نیکی تقوی پرہیزگاری میں گزرے گی۔ نمبر 2، آپ کی عمر واقعی طویل ہو جائے گی۔ لوہے محفوظ پہ لکھا ہے کہ اس بندے کے 2 آپشن ہیں، 40 سال کا ہو کے مرے گا یا 60 سال کا ہو کے مرے گا۔ 40 سال میں مر جانا اس نے، لیکن اگر صدقہ دے گا، قرابت داری کرے گا تو ہم اس کو ایکسٹینشن دے دیں گے۔ اور تیسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ تو مر جائے گا لیکن مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دل میں زندہ رہے گا۔ تو نبی پاک سے پوچھا گیا یا اللہ مخلوق میں بندوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا وہ جس کی عمر لمبی اور اعمال اچھے ہوں۔ سب سے برا کون ہے؟ جس کی عمر لمبی اور اعمال برے ہو۔ یار اٹس ویری کلیئر، اٹس ویری کلیئر۔ آپ کے پاس ایک سرمایہ ہے، یو ہیو انویسٹمنٹ، آپ تجارت میں لگا دیتے ہیں اور آپ کو ٹائم ملتا ہے اس تجارت کو کرنے کا، تو یو آر بیٹر آف۔ ٹھیک ہے نا، تجارت کے لیے پیسہ تھا، لگایا اور ٹائم بھی ملا تو ٹھیک ہے۔ اور آپ کے پاس پیسہ تھا لیکن آپ کو ٹائم نہیں ملا تو اب ریزلٹس ویسے تو نہیں آئیں گے، آپ اس کا فائدہ بھی نہیں اٹھا پائیں گے۔ تو آپ کی زندگی میں سب سے اہم سرمایہ آپ کی عمر ہے۔ If you invest it wisely۔ طلحہ بن عبید کہتے ہیں میں کھڑا تھا نبی پاک کی بارگاہ میں، 2 بندے آئے، دونوں نے اسلام قبول کیا، دونوں صحابی بن گئے، اور اس کے بعد دونوں عبادت گزار تھے۔ ایک زیادہ عبادت گزار تھے کمپیریٹیولی، وہ جو زیادہ عبادت گزار تھے وہ ایک غزوے میں شہید ہو گئے، اور جو دوسرے تھے ان کو 1 سال بعد فوت ہوئے وہ۔ تو میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے باہر ہوں اور وہ دونوں صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ جنت سے کوئی ایک دم آتا ہے، کہتا ہے جو 2nd نمبر پہ شہید فوت ہوئے تھے نا 1 سال گزار کے، وہ پہلے آ جائے، اور پھر دوسرے کو کال آتی ہے۔ وہ صبح اٹھ کے سب کو بتاتے ہیں کہ یار وہ غزوے میں شہید ہوئے اور زیادہ عبادت گزار اور 2nd نمبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پتا چلا، نے کہا حیران کیوں ہوتے ہو؟ Why you are so much surprised? The person who lived 1 year long, he got 1 more Ramadan. He offered many prayers. اس کو 1 سال کا رمضان نہیں ملا، اس کو اتنی نمازیں اور نہیں ملی۔ تو یہ لمبی عمر ہے۔ ویسے آپ کو پتا ہے لمبی عمر کے لیے آب حیات کا کانسیپٹ بھی ہے نا، پی لو پانی بس، یہ سچی بات بھی ہے۔ ابھی انہوں نے 5 اسکورس سرچ کرنا جا کے، جو آپ میں سے اس طرح کے ذوق رکھتے ہیں، 5 اسکورس UAE کے اندر کلب بنایا انہوں نے، اور لیٹسٹ ریسرچ ہے کہ انٹرلیوکن 11 نام کی پروٹین کو اگر ختم کر دیا جائے جسم سے تو ایجنگ رک جاتی ہے۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں آب حیات کی۔ یہ حضرت ذوالقرنین حضرت خضر علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت ذوالقرنین یہ نبی نہیں تھے، ولی تھے، ان کا ذکر قرآن میں ہے۔ ان کو ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں؟ ان کے سر پہ 2 ابھار تھے، ان کو ظاہر باطن کا علم دیا گیا، یہ ظلمت میں بھی گئے، روشنی میں بھی گئے، اور دنیا کی بادشاہت ان کو دی گئی تھی۔ یہ 4 لوگ ہیں جن کو دنیا کی بادشاہت دی گئی، 2 اس میں مومن ہے، 2 اس کے اندر جو ہے وہ غیر مسلم ہے۔ حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان، they were prophet and they were king prophet and he was a king saint۔ اور بخت نصر نمرود یہ غیر مسلم، یہ بھی دنیا کے حکمران بنے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے کتابوں میں پڑھا کہ جناب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی اولاد میں ایک بندہ آب حیات پیے گا and he will enjoy life۔ تو یہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ نکلے، یہ سب قرآن میں ہے، نکلے کہ وہ آب حیات ڈھونڈتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو آب حیات مل گیا، انہیں نہیں ملا، لیکن ان کے سفر کی جھلکیاں جو ہیں وہ قرآن مجید میں ہیں، کچھ جھلکیاں ہیں۔ پہلی تو بات قرآن واضح طور پہ کہتا ہے کہ جو اس نے ارادہ کیا ہم نے اس طرف اس کو چلا دیا۔ اس نے مغرب میں جانے کا ارادہ کیا تو یہ مغرب کی راہ پہ چلا تو مغرب میں چلا گیا۔ اٹس ویری بگ موٹیویشن فار اس دیٹ وٹ ایور یو ول میک اے گول دین یو ہیو ٹو سلیکٹ دا رائٹ پاتھ فار دیٹ گول۔ گول چنو تو اس کے گول کے پاتھ کی طرف بھی تو جاؤ نا۔ بننا ڈاکٹر جاتے ہو، چلے جاؤ UIT لاہور میں، ڈاکٹر بن پاؤ گے؟ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، one is very sweet goal, very beautiful goal, very big talks, and one is very average but executed۔ ایک بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں آپ، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور کرتے ہی جا رہے ہیں باتیں، وہ ایک بات ہے، لیکن آپ کی باتیں اتنی بڑی نہیں ہے لیکن عمل ہے، ان باتوں کا عمل ہے، یہ زیادہ اہم چیز بن جائے گی۔ حضرت ذوالقرنین وہ مغرب کی طرف گئے اور اس جگہ پہنچ گئے ساری آبادیوں کو کراس کرتے ہوئے جہاں انہیں سورج ایک سیاہ چشمے میں ڈوبتا ہوا نظر آیا۔ جیسے کوئی سمندر میں جا رہا ہو تو اس کو سورج پانی میں ڈوبتا نظر آئے گا نا، یوں اس کو نظر آیا، یوں ان کو نظر آیا۔ وہ کہتے ہیں وہاں پہ لوگ تھے جو کہ
जानवरों की खाल के कपड़े पहनते थे और मुर्दा जानवर उनकी ग़िज़ा होते थे। तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि इनको इस्लाम की दावत दो, मान जाते ठीक है, नहीं तो जो इनके साथ करो। फिर उसके बाद आप मशरिक की तरफ गए, मशरिक की तरफ आप वहां तक चले गए जिस जगह पर सूरज तुलू होता है, और वहां पर उन्होंने लोग देखे। वो लोग, इतनी गर्मी थी, जमीन नरम थी, कोई कंस्ट्रक्शन वहां पे नहीं हो सकती थी। उन्होंने बरोज बनाए हुए थे, यू नो द बरोज, बरोज मीन गार, सुराख, जिनमें ये जानवर सर्दियों में नहीं सो जाते जाके और फिर पूरी सर्दियां सो के गुजारते हैं वो। तो उन्होंने, कुरान मजीद में लिखा है कि वो लोग ना सूरज निकलते वक्त उन गारों में घुस जाते थे और फिर जवाल के वक्त बाहर आके काम किया करते थे। तो जुल्करनैन, हिज स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। अपने बच्चों को स्टोरी सुनाया करें ऐसे। आपका नाम ऐसे सिकंदर था और सिकंदरिया नाम का शहर भी इन्होंने बनाया था। हज़रत खिज़र नबी है लेकिन आपके दरबारी थे, आपके वजीर थे। इसके बाद ये शमाल की तरफ गए, वहां दो बड़ी बड़ी पहाड़ियां थी, उनके दरमियान में जगह थी और उन पहाड़ों के पीछे कौम रहती थी। हज़रत नूह के बेटे याफस की नस्ल से याजूज और माजूज, यू मस्ट हैव हर्ड दिस नेम। दे वर बारबैरिक, जंगली वहशी किस्म के लोग थे ये उसी पहाड़ के पीछे से आते, उस रास्ते से आके ये बिच्छू, सांप, बंदे बहार में आते तो खेतियां सब उजाड़ के खा जाया करते थे, खुश्क सामान लाद कर पीछे ले जाया करते थे। उन लोगों ने कहा, कुरान मजीद में आता है कि जी कोई पैसे ले लें, आपके पास इल्म भी है, आप बादशाह आदमी है, तो ये दीवार बना दे, इनसे बचा लें हमें। आपने कहा जी अल्लाह का दिया तो बहुत कुछ है, माल बहुत कुछ है, चौके मैं यहाँ पे हूँ, अफरादी कुव्वत से मेरी मदद करो, मैन पावर दो। जी क्या करना है? बड़े बड़े पत्थरों की तरह के ना लोहे के टुकड़े लाओ। दिस इज मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग इन इस्लाम, दिस इज सिविल इंजीनियरिंग इन कुरान, दैट वी आर नाउ गोइंग टू मेक ए कंस्ट्रक्शन। तांबे का जिक्र कुरान में आया, तांबा ना हो तो सारी बत्तियां बुत्तियां बंद है, कहां से बनेगी तारें ये जो बनती? कॉपर इज वेरी गुड कंडक्टर, यू नो, कॉपर कंडक्टर है ना, बिजली को कंडक्ट करता है। तो उन्होंने जमीन का खोदो, इतनी नीचे खुदाई कर दो कि पानी निकल आया। पानी निकल आया तो अब का इसके ऊपर अब बड़े बड़े पत्थर रखो और उन पत्थरों पर ये लोहे की सिलें रखो और इसको दरमियान से लकड़ी और कोयले से भर दो। फिर तांबे को पिघलाया और उस तांबे को पिघला के उसके ऊपर उसकी कवरिंग की और उसको आसमान तक दीवार को ले गए। जिस तरह भी ये जापान कर रहा है ना, सुनामी से बचने के लिए दीवारें बना रहा है, अभी इसने प्लांट की दीवारें बनाई, लेकिन रब का करम है, रब का एक अंदाज है, खुदा की कुदरत है, फिदरत का एक स्टाइल है कि ये जापान ने, क्योंकि जापान में सुनामी बहुत आते हैं, जरा सा भी उछल जाए तो एक आधा शहर वैसे ही ले जाता है, तो उन्होंने इतनी ऊंची दीवार बनाई। उस दीवार बनने के बाद जो पहला सुनामी आया वो दीवार से 15 फुट ऊपर आ गया। उन्होंने कहा ये हम क्या करें, तो दीवार बनाई आसमान तक पिघले हुए तांबे से। अब जब याजूज माजूज आए, उन्होंने उस पर चढ़ना चाहा तो मुलायम थी, फिसल गए, तोड़ना चाहा तो सख्त थी, सुराख ना हुआ। अब वो रोज आते हैं और आते जुल्करनैन ने दीवार बनाकर कहा कि ये अल्लाह की नेमत है जो तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि मुसीबत से जो चीज बचे तो नेमत है, तो ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह जब तक चाहेगा ये दीवार कायम रहेगी, जब चाहेगा तो ये टूट जाएगी। तो तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, नबी पाक ने फरमाया कयामत की निशानियों में से निशानी है, याजूज मजूज रोज आके काम करते हैं, दीवार को नुकसान पहुंचा देते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कल करेंगे, और वापस आते हैं, अल्लाह उस दीवार को उतना ही दोबारा कर देता है। और जब अल्लाह चाहेगा निशानी पूरी होनी होगी, उनका सरदार कहेगा हम इंशाअल्लाह कल आके उसको तोड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये इंट्रोडक्शन ऑफ इंशाअल्लाह उनकी मुराद पूरी कर देगा। अगले दिन वो आएंगे, दीवार रिपेयर नहीं हुई होगी, उतनी ही टूटी होगी जितनी कल तोड़ी थी, वो उसको ढा देंगे और हमला कर देंगे। उधर क़यामत की और निशानियां पूरी हो रही होंगी। सो नाउ यू कैन वेल इमेजिन दैट व्हेन यू आर गोइंग टू मेक ए प्लान, व्हेन यू आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स सम गोल, द बिगेस्ट प्लानिंग इन इस्लाम इज इंशाअल्लाह। आप प्लानिंग पे जितनी मर्जी थ्योरीज पढ़ लें, आप प्लानिंग पे जितना मर्जी लिटरेचर पढ़ लें, आप मुसलमान हैं, आपकी सारी प्लानिंग का दारोमदार क्या होना चाहिए? इंशाअल्लाह। मेरा एक प्लान है और एक उसका प्लान है, होना वही है जो उसका प्लान है। इधर क़यामत की दूसरी निशानियां पूरी हो रही होंगी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का खुरूज हो चुका होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दज्जाल को मार दिया होगा और हुक्म होगा ईसा कोहे तूर पे चले जाओ अपने लोगों के साथ, और ये याजूज माजूज हमला कर देंगे और बड़े बड़े समुंदर पी जाएंगे, और फिर उसके बाद कहेंगे जमीन वालों को मार दिया, आसमान वालों को मारते हैं, वो तीर फेंकेंगे, अल्लाह तीर की नोक पे खून लगा देगा। फिर तो ईसा अलैहिस्सलाम दुआ फरमाएंगे कि गर्दन पे कीड़ा पैदा होगा, सारे मर जाएंगे, और फिर आएंगे बड़े बड़े जानवर उनको उठाकर फेंक देंगे। तो बहरहाल मैं आपसे जो बात कर रहा था, हमारा मुद्दा था आब हयात, कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने आब हयात पिया और अब वो फौत नहीं हुए। ये 4 नबी हैं जो जिंदा है, अभी तक उन्हें मौत नहीं आई। नंबर 1 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, नंबर 2 हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, दे आर लिविंग इन स्काइज, आसमानों पर।
नंबर 3 हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, नंबर 4 हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। हज़रत इलियास ये ना ज़मीन पर एडमिनिस्ट्रेटर है, बेयाबानों में सहराओं में ये हुकूमत करते हैं, जाते हैं, गाइड करते हैं। हज़रत खिज़र ये पानी पर एडमिनिस्ट्रेटर है। ये हर साल रमज़ान में खाना काबा आते हैं, रोज़े भी रखते हैं, और हज पर ये हज भी करते हैं, और फिर हज पे ये आप जमजम पी लेते हैं, पूरा साल इनको खाना कफ़ायत करता है। फिर क़यामत के करीब जब मौतें सबको आएंगी तो फिर इनको मौत आएगी। आब हयात। सो माय डियर फ्रेंड्स, इंसान जितना भी जी ले, वैसे जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए थे ना, मौत का फरिश्ता आया था, तो आकर कहा जी मैंने अपनी जान कब्ज़ करनी है, उन्होंने रोक के थप्पड़ मारा उसके मुंह पे। वो थप्पड़ मारा तो वो आँख निकल गई। आए आकर अर्ज़ की, ऐ बारी ताला तूने ऐसे बंदे के पास भेजा जो मरना नहीं चाहता। अब तो मूसा अलैहिस्सलाम वाज वन ऑफ द सीएन, लाडले नबी थे। कहा इनसे कहो कि ये बछड़ा है, इसके ऊपर हाथ रख दें, जितने बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे उतने साल आपके बढ़ा देते हैं। तो कहा फिर हमारी उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मौत है। तो कहा जब तब मौत है तभी भी मौत ही है, जाना तो है। वो फरिश्ते को इससे थप्पड़ मारा था कि मतलब यूं इतनी बड़ी बारगाह में आके वो मौत का कहने भी नहीं आया था, उसको ये नहीं कहा गया था, वो आए आके मौत का कह दिया। तो यूं इस तरह से इतनी बड़ी बारगाह में एकदम से यूं कर देना ना, ये सही नहीं होता। इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जहाँ जा रहे हैं आप, क्या बात आपने किस तरह करनी है। इंसान जी ले, कितना कुछ जी लेगा। एक बंदा बड़ी प्यारी बात कहता है कि ओहदे, सियासत, स्किल्स, पैसा, आज तक इन बातों की वजह से किसी से ना मोहब्बत नहीं हुई। आप इतराज कर सकते मेरी बात पर, लेकिन बात पूरी सुन लें। पैसा, ओहदा, सियासत में कोई रुतबा या कोई और वजह किसी के अंदर हो और इन बातों की वजह से उससे सच्ची मोहब्बत की जाए, ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ। हाँ, इन बातों की वजह से इज्जत की जा सकती है, इन बातों को एंजॉय किया जा सकता है कि मैं इससे फायदा कैसे उठाऊं, पैसा इसके पास है तो इसकी शोहरत मेरा साथ लग के खड़ा हो जाऊं, ये किया जा सकता है। मोहब्बत नहीं हो सकती। मोहब्बत कब होती है? व्हेन यू आर कंपैशनेट, व्हेन यू लव समवन यू विल गेट द लव बैक। कि जब आप हमदर्दी करते हैं, जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं, अब आपको वो सच्चा प्यार दे सकता है। बैठ जाते हैं उसके पास, और अगर ओहदा है और साथ ये चीज भी है तो बड़े बड़े आए, दुनिया से चले गए, ओहदे को किसी ने नहीं याद रखा, उसके प्यार के बोल को याद रखा, उसके किरदार को याद रखा, उसका उसने इखलाक याद रहा। कहते नहीं है कि अगर तुम्हारी दौलत चली गई कुछ नहीं गया, अगर तुम्हारी सेहत चली गई कुछ कुछ चला गया, और अगर तुम्हारा किरदार चला गया तो सब कुछ चला गया। तो मेरे नौजवानों, याद रखो, शादी होगी या नहीं होगी ये पता नहीं है, लेकिन मौत तो आनी है। ऐसे शादी होनी चाहिए, ये ना कोई समझेगा ये कह रहा है शादी ना हो तो शादी को भूल जाओ। मेरे पास इस वक्त गैलप और गिलानी का सर्वे पड़ा हुआ है, पाकिस्तान में 24% लोग जो हैं वो नौजवान और शादीशुदा नहीं है। ये बहुत अलार्मिंग रेशो है। होनी चाहिए शादी। नबी पाक ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है। नबी पाक ने फरमाया कि निकाह करो नौजवानों, अगर इस्तात रखते हो, नहीं इस्तात रखते तो रोजे रखो। और नबी पाक के पास साहबा आए, कहा जी हम इबादत में एक सुई के लिए शादी छोड़ दें, औरत छोड़ दें। नबी पाक ने फरमाया मुझसे ज्यादा रब से डरने वाला कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा जिस बात से रब ने मना किया उससे बचने वाला कोई नहीं है। मैं नफल रोजे भी रखता हूं, नहीं भी रखता, रात को सोता भी हूं, नहीं भी सोता, मैंने शादियां की हैं, और जो मेरी बात से मुंह फोड़े वो मेरे साथ नहीं है। शादी इज इंपॉर्टेंट। आज बहुत से स्कूल ऑफ थॉट हम देखते हैं, वहां पे शादीशुदा जिंदगी को रूहानियत का एंटी समझा जाता है, सेकंड ग्रेड सिटीजन समझा जाता है अगर शादी ना की जाए। वो कहते जी घर गृहस्थी का निजाम ये रूहानियत के खिलाफ है। हाउ इज इट पॉसिबल? यकीन करो ऐसे निजाम फिर चोर दरवाजे ढूंढते हैं, क्योंकि नबी पाक ने ये जो कुरान मजीद हमें दिया, कुरान मजीद की आयत है कि तुम अपनी फितरत पे रहो, अल्लाह ने तुम्हें फितरत पर पैदा किया। डॉक्यूमेंट्रीज बनी उन लोगों के ऊपर कि उन्होंने फिर बाद में क्या क्या हरकतें की हैं, इतनी बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है।